हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today our most important chapter is the fundamental right. There is a most important. What you meaning to an important of fundamental right or the first point here, meaning and important of fundamental right. The right which are enshrined in the constitution are called to the fundamental right. This right is ensure the full set of physically, mental and moral development of every citizen. They include those basic freedoms and conditions which alone can make a life as the world lives. Fundamental right is a generate a feeling of security among there is a minorities in the country. There is establish the framework of democratic legitimacy for the rule of majority. No democracy can be function in the sense of basic rights such as the freedom of speech and expression. That is the most important for here. And fundamental right is a provide to the standard of conduct of citizenship and justice and fair of play. They serve as a check on the government and the various social, religion, economics and political problem in our countries make a fundamental right important. In our constitutions is a fundamental right are enumerated their part 3 from to article 14 to 32. These rights are justable. And what do you mean justable? Justable here is a mean that if these rights are violated by the government or anyone else, the individual has the right to approach the Supreme Court or High Court for the protection of his here fundamental right. Our constitution does not be a permit their legislatures and the executive there is a curves. This right is either by law or by our executive order. The Supreme Court or High Court can be set aside any law that is found to be in favoring or abridging their fundamental right. You will be read about it in the detail in the lesson judiciary. And some of fundamental rights are also enjoyed by the foreigners. For example, the right to equality before the law and the right to a freedom of religion and enjoyed by both citizen as well as the foreigner. The fundamental right is a through the justable are not absolute. Their constitution empower the government to be imposed is a contains or restriction on the enjoyment and over right in the interest of public goods. Several fundamental rights were enshrined in the Constitution of India. However, their right as property was removed from this list. The remove of there is a property right. Their fundamental right of articles is a 44 Amendments Act of the Constitution in the year 1976. Since there it is has been to made of legal right, there are now 6 fundamental right here. Here's the most important fundamental rights here. Note down your note copies. The first here, right to the equality, and the second is the right to the freedoms, right against the explanations, and the right to the freedom of religion and culture, education right, and right to the constitutional remandance. There is the most important 6 of fundamental right on come to the exam. Currently by 86 is a Amendment Act. A right of education has been included in this list of fundamental right as a part of the right of freedom by adding Article 21A. Friend is the most important here is the entry for the right of education for the 86th Amendment and the Article 21 and the part of right of freedom of adding. And you will be now study this right one by one in this lesson. यदि बात हम यहाँ पर करें अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम मौलिक अधिकार का अर्थ और महत्व के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए ये जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है। जो भारत के नागरिक है उनको मौलिक अधिकारों का भी ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। जिनको मौलिक अधिकार का ज्ञान नहीं रहेगा वो देश में कहते हैं नहीं अपना जो है अधिकार समझ पाएंगे। तो देखिए चलिए देखते हैं हमारा आज मौलिक अधिकार क्या है, क्योंकि ये कई क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छे से इसको ध्यान से सुनिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात होगा उसको नोट करने की कोशिश भी कीजिएगा, तभी जो है आप इस पे जो है सब्जेक्ट पे पकड़ बना पाइएगा। कहते हैं वो अधिकार जो संविधान में वर्णित है मौलिक अधिकार कहलाते हैं। यह अधिकार सभी नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास और पुनर्रूपण सुनिश्चित करते हैं। वह उन सभी
आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा शर्तों को सम्मिलित करते हैं जो एक उचित रहन सहन के लिए आवश्यक होते हैं। मौलिक अधिकार देश में अल्पसंख्यकों के बीच में एक सुरक्षा का एहसास पैदा करता है, क्योंकि देखिए हमारे देश में बहुत से पिछड़े जाति के लोग होते हैं। अगर मौलिक अधिकार हमारे पास नहीं रहेगा तो उनके साथ सदैव ही असुरक्षा की भावना जुड़ जाएगी, क्योंकि हमारे देश में कहते हैं पुराने समय में अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों के साथ हमेशा दुराचार हुआ है और उनके तरह बहुत तरह की जो है प्रताड़ना दी गई है। तो कहते हैं मौलिक अधिकार होने की वजह से जो है इसमें कानूनी सख्ती से जो है कदम भी उठाती है, इसलिए मौलिक अधिकार होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं वो बहुसंख्यकों के शासन के लिए लोकतांत्रिक वैधता की रूपरेखा प्रतिस्थापित करते हैं। आधारभूत अधिकार जैसे भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना कोई लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता। यानी देखिए अगर कोई व्यक्ति को बोलने का अधिकार ना हो, हमें कहीं जाने की स्वतंत्रता नहीं हो, तो कहते हैं कई मायने में लोकतंत्र नहीं रह जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये होता है जहाँ पर लोगों की अपनी राज हो, वहाँ पर किसी प्रकार की जो है मनाही न हो। कहते हैं मौलिक अधिकार आचरण, नागरिकता, न्याय और निष्पक्ष क्रियाकलाप के मानक प्रदान करते हैं। वो सरकार की जांच परख के रूप में कार्य करते हैं और हमारे देश के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याएं मौलिक अधिकारों को ही और भी महत्वपूर्ण बना देती है। यानी देखा जाए तो मौलिक अधिकार जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें आचरण, नागरिकता होने की और न्याय एवं निष्पक्ष क्रियाकलाप के जो है मानक प्रदान करता है। यानी आप एक कैसे आचरण आपने करना है, आप किस देश के नागरिक हो, उस देश से कैसे आपको उस देश में बिहेव करना है, आपके लिए न्याय प्रणाली कैसी रहेगी, ठीक है। साथ में अगर सामाजिक तौर से देखा जाए तो ये देश के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को भी बहुत ही सुचारू रूप से जो है सोल्यूशन करती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत धारा जो है 14 से 32 में मौलिक अधिकार उल्लेखित है। यह अधिकार न्याय संगत है। देखिए कई बार जो होता है MCQ क्वेश्चन में आ जाता है कि संविधान के कौन से भाग में के अंतर्गत आता है, तो भाग 3 है और धारा भी कभी भी पूछ लिया जाता है। तो 14 से 32 में जो है मौलिक अधिकार के बारे में जो है पूछी जाती है। ये कई क्लास कहते हैं ना, ये जो है कहते हैं बड़े बड़े क्लासों के लिए बहुत जरूरी, चाहे UPSC के एग्जाम भी देते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये यहाँ पर एक वर्ड आया है न्याय संगत। देखिए न्याय संगत का अर्थ क्या होता है? न्याय संगत का मतलब होता है, इसका अर्थ है कि यदि इन अधिकारों का उल्लंघन सरकार या किसी अन्य द्वारा किया गया तो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी उच्चतम और उच्च न्यायालय में आप जा सकते हो, अपील कर सकते हो। इसका मतलब है कि सबके लिए जो न्याय संगत है, यानी न्याय सभी के लिए है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है। तो ये बहुत काफ़ी जो है हमारे देश के जो है मौलिक अधिकार जो है हम विशिष्ट बना देती है। हमारे संविधान जो है विधायक और कार्यपालिका को न तो कानून न ही कार्यकारी आदेश द्वारा इन अधिकारों को तोड़ा या मरोड़ने की अनुमति देता है। यानी हमारे कोई भी चाहे विधायक पालिका के सदस्य हो चाहे कार्यपालिका को, इनमें तोड़ना मरोड़ना उनको नहीं दी गई अनुमति। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे कानून को निरस्त कर सकते हैं जो मौलिक अधिकार में बाधक सिद्ध होते हो। अब इन बारे में जो है न्यायपालिका के जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि मौलिक अधिकार को जो है उच्च न्यायालय किस प्रकार जो संरक्षित प्रदान करता है। तो उस चैप्टर आने का प्रतीक्षा कीजिए। कहते हैं कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों द्वारा भी उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे उदाहरण विधियों के समक्ष समानता का अधिकार। देखिए कोई विदेशी भी हमारे देश में आकर इन जो है मौलिक अधिकारों का जो है उपयोग कर सकता है। जैसे कि समानता का अधिकार, सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार यहाँ पर दिया गया है। यानी कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि दूसरे के धर्म के प्रति गलत अवधारणाओं का जो है व्यक्त न करे। ये दोनों अधिकार नागरिक तथा विदेशियों द्वारा सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ऐसा कौन से अधिकार हैं जो हम भारतवासी भी उपयोग कर सकते हैं और विदेशी वाले भी कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि समानता का अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेश वाले भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है न्याय संगत होने के बावजूद भी असीम नहीं है। कहते संविधान सरकार को जो है लोक हित में हमारे अधिकारों का उपयोग पर कुछ निश्चित प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान किया गया है, लेकिन फिर भी जो है कुछ शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना न्याय संगत ही रहेगा। अगर देखा जाए तो भारत संविधान में 7 मौलिक अधिकार वर्णित थे। पहले के समय में अगर देखा जाए तो 7 मौलिक अधिकार वर्णित थे। यद्यपि वर्ष जो है 1976 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। तब से ये एक कानूनी अधिकार बन गया। अब जो है मौलिक अधिकार हमारे समक्ष 6 है।
और ये जो 6 मौलिक अधिकार आपके समक्ष दिख रहा है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका जितना हो सके अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये साधारण लैंग्वेज में है और साधारण भाषा में है। तो ये नोट कर लेना आपके लिए एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको देखना है, देखिए समानता का अधिकार हमें दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार भी दिए गए हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार भी जो है हमारे इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। There is a first of right to equality. There is a first of fundamental here right. There are a right to be equality, and the right to equality means that all citizens enjoy the equal, the presence of the opportunity. It is a protest the citizen against any discrimination by the state on the basis of the religion, caste, race, sex, or place of birth. Right to equality is include of 5 is the types is equality here. The first here, equality before a law. According to the Constitution, the state shall not be denied to any person equality before a law or equal protection of the law within the territory of India. And equality before the law means that no person is above law and all the equal before the law. Every individual has an equal access to be a court and equal protection of the law. Mean that if two persons belonging to the two different is a community commit there is the same crime, both of them will be get the same punishment. The next year, no discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. No citizen shall be denied access to the shop, restaurant and place of the public entertainment, and neither shall only one be denied there is a use of the well, tank, worthings, ghat, road, etc. The maintaining policy is a part of the state of fund. However, the state is empowered to make a special provision for the women, children, and for the life of the scheduled caste and scheduled tribes and other backward classes (OBC). The states can be a reserved seat for this category in their educational institution, grant fee concessions, and arrange the special coaching classes. The next year, equality of opportunity for the matter of public employment. This is the most important here. Our constitution guarantees equality of opportunity to the matter relating to the employment of appointment of public service to all citizens. There shall be no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth, or reside as in a matter relating to the employment in a public service. The merit will be the basis of the employment, and however contain the limitation has been provided to be enjoyment of this right. And the next year, ambition of untouchability. The constitution is abolished to untouchability, and the practice in any form of is a forbiddance, and action in the box are considered as offense when to community on the ground of the untouchable. The here box in the so the refusing of admission to any person to the public institutions. There is a preventing any person for the work is a sweeping in the place of public worship, and insulting of the member of scheduled caste on the ground of untouchability, and preachings and untouchability directly or indirectly. There is an ambition of the title. All title nations are foregone which create artificial distinctions in a social stature among there is a people has been to the abolished. This provision has been to include in the constitution to do away with the title like Rai, Sahib, Rai Bahadur has been conferred by the British on few Indian as a reward for their effective cooperations to be a canonical regime, and the practice of the conferring title like this against the doctrines of equalities before law, to recognize of the meritorious serious of rendered by the individual citizen to be a country or mankind. There a president of India can offer civil and military award this is individually for their service and achievements such as Bharat Ratna, Padma Bhushan, Padma Shri, Brahmavir Chakra and Veer Chakra etc. But there cannot be used titles. दोस्तों यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम पहले जो है अधिकार के विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। समानता
के अधिकार। समानता के अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, समानता के अधिकार का अर्थ यही है कि सभी नागरिक सामान्य रूप से विशेष अधिकारों तथा अवसरों का उपयोग करें। यह राज्य द्वारा धर्म, जाति, वंश या कुल, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर विभेद के रूप में रक्षा करता है। तो ये समानता का अधिकार ही हमें इन सारी चीज़ों को जो है प्रोटेक्शन प्रदान करता है। फिर भी देखा जाए तो समानता के अधिकार के 5 प्रकार से जो है यहाँ समानताएं दी गई है, जो हम 5 जो है अलग अलग विषय पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला विषय हमारे लिए क्या है। पहला हमारे लिए विविधों के समक्ष समानता, यानी विविध के समक्ष समानता। इसका अर्थ यही हुआ कि संविधान के अनुसार भारत क्षेत्र के अंदर राज्य किसी भी व्यक्ति को विविध के समक्ष समानता या सामान्य सुरक्षा देने का अस्वीकार नहीं कर सकता है। यानी आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ पर आपको जो है देखा जाए तो आपको सुरक्षा का अधिकार पूरा दिया गया है। विधियों की समक्ष समानता का अर्थ कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, यानी जो हमारे राइट बने हुए हैं उसके ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, उनको भी सजा दी जा सकती है और सभी कानून के समक्ष सामान्य ही है। हर व्यक्ति को न्याय जानने का सामान्य अधिकार प्राप्त है। विधि के समक्ष सामान्य सुरक्षा का भी अर्थ अलग अलग समुदाय के 2 व्यक्ति यदि एक ही अपराध करते हैं तो वो सामान्य दंड के ही भागी होंगे, ये नहीं कि दोनों को अलग अलग सजा दी जाएगी। तो ये हमारे भारत का सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रावधान है। विधियों के समक्ष सबको जो है समानता का अधिकार दिया जाता है। न्याय किसी प्रकार के जो है किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं कर सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया गया है। यानी ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी नागरिक को सार्वजनिक मनोरंजन तथा दुकान तथा भोजनालय जाने पर मनाही नहीं है। राज्य के कोष से पुण्य अथवा आंशिक रूप से प्रबंधित कुआं, तालाब, स्नाई, घाट, सड़कें आदि के उपयोग पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि राज्य जो है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए जो है अधिकृत है। राज्य इन वर्गों के लिए जो है शैक्षिक संस्थाओं में स्थान आरक्षित कर सकता है और जो शुल्क में छूट भी दे सकता है या विशेष प्रशिक्षण कक्षाओं का प्रबंधन भी कर सकता है। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे लिए किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो धर्म उसका कुछ भी हो, उसका वंश कोई भी हो, जाति कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, जन्म स्थान कहीं भी हो, तो उसके साथ कोई तरह का भेदभाव नहीं हो सकता है। ये हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को विशेष तौर पे रखा गया है। अब कहीं भी जा सकते हो, चाहे आप कुएं में पानी भरने जाओ, तालाब, स्नान घाट, सड़क इत्यादि सबका जो है आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन कहते हैं इन सब चीज़ों का जो है आप दूषित करोगे तो ये संविधान के खिलाफ हो जाएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता। कहते हैं हमारे संविधान सभी नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्ति या रोजगार के जो है संबंध में सामान्य अवसर की गारंटी देती है। यानी सभी को जो है रोजगार मिलने की गारंटी देती है। सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्तियों के संबंध में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबके नियुक्ति जो होगा सामान्य रूप से किया जाएगा जो व्यक्ति उस चीज़ के योग्य हो, यानी योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी। हालांकि इन अधिकारों का उपयोग निश्चित सीमाओं तक ही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अशुद्धता का उन्मूलन। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जो है संविधान अशुद्धता का उन्मूलन भी करता है तथा उसके किसी भी रूप में इस्तेमाल का जो है निषेध सदैव करता है। निम्नलिखित बॉक्स में दिए गए कार्य अशुद्धता के आधार पर किया गया हो तो उसे अपराध माना जा सकता है। देखिए कौन कौन सी बातें हैं जिसको अशुद्धता के ऊपर जो है कानूनी अपराध माना गया है। तो पहला बात आता है कि सार्वजनिक स्थानों में किसी व्यक्ति के प्रवेश पर मनाही नहीं होगा, क्योंकि वह सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर हर एक व्यक्ति को जाने का पुण्य अधिकार है। दूसरा है सार्वजनिक पूजा स्थल पर किसी व्यक्ति को पूजा करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती, ये भी कानूनी अपराध है। अशुद्धता के आधार पर अनुसूचित जाति के सदस्यों को जो है अपमानित करना भी ये कानूनी अपराध के रूप में आया है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अशुद्धता को बढ़ावा देना भी ये कानूनी अपराध के कैटेगरी में आएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उपाधियों की समाप्ति। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आया था कि सभी राष्ट्रीय विदेशी पदवी का जो लोगों के बीच में कृत्रिम विशेषताओं की संरचना करती है उन्मूलन कर दिया गया, यानी उसको हटा दिया गया है। पहले लोग होते थे अपनी पदवी का जो है गलत उपयोग किया करते थे, अपने नाम के साथ उसको जोड़ लिया करते थे, तो इसको जो है हटा दिया गया है। कहते हैं इस प्रावधान के संविधान में राय साहब, राय बहादुर जैसे पदवी को कुछ भारतीयों को उपनिवेश शासन में प्रभावकारी सहयोग के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई थी।
कहते दूर करने के लिए समाहित किया गया था और इस तरह पदवी प्रदान करने का कार्य भी विधि के समक्ष सामान्य सिद्धांतों के विरुद्ध था। मानवता का या देश के जो है प्रशंसनीय सेवाएं करने वाले व्यक्ति या नागरिक को भारत के राष्ट्रपति उनके सेवाओं का उपलब्धियों के लिए नागरिक का सैन्य सम्मान जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, परमवीर चक्र इत्यादि प्रदान कर सकते हैं, परंतु इन्हें उपाधि के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट पहलू थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात था। अगला जो होगा इसका अधिकार उसके हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इसी तरह त्रिपान सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना फ़ायदा रहेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। देखिए दोस्तों, ये तो अपने लिए था, लेकिन दूसरे बच्चों को भी भलाई करना नहीं छोड़ना है। जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाना है। तो इसके लिए आपको क्या है, व्हाट्सअप स्टेटस पे भी इसको कुछ समय के लिए लगाना है। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए।